بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور موجود ہوں بنو میں۔ بنو کی صورتحال آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جنوبی ریجن جو ہے، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال کافی ناگفتہ ہے۔ یہاں پہ پولیس اہلکاروں نے بھی مظاہرے کیے، سادہ کپڑوں میں عام لوگوں نے بھی مظاہرے کیے۔ بنو امن مارچ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور انہوں نے امن کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد پھر ایک دوسرا امن مارچ ہوا اور پھر دھرنے ہوئے، گرفتاریاں ہوئیں۔ سابق پولیس اہلکار جمشید خان کو گرفتار کیا گیا، سینکڑوں دیگر لوگوں کو گرفتار کیا گیا، شیڈول 4 میں لوگوں کو ڈالا گیا۔ اب جمشید خان میرے ساتھ کھڑے ہیں اور ساتھ ہی ناصر خان منگش ہیں، یہ چیمبر آف کامرس بنو کے فاؤنڈر ممبر ہیں، نائب صدر ہیں، سینئر نائب صدر ہیں۔ اور جس طریقے سے تاجر تنظیموں نے امن مارچ کی کال دی تھی، اس کال پر لبیک کہا تھا بنو کے لاکھوں لوگوں نے۔ اور اس کے بعد کی ساری صورتحال ہم ناصر خان بنگش صاحب سے بھی جانیں گے، اور سب سے پہلے ہم جمشید خان کو ان کی رہائی پر مبارکباد دیں گے۔ جمشید خان، کتنے دن آپ گرفتار رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عادل بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس مشکل وقت میں اور میرے پاس آ گئے اور آپ نے مبارکباد بھی دی۔ میں تقریباً 52 کے 54 دن میں تقریباً حراست میں تھا جی۔ ایک تو TMPO میں تھا، اس کے بعد پھر 780 پشاور میں بھی مجھے FIR دیے گئے، اور اس کے علاوہ آخری FIR جو تھا وہ بنو کا تھا۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی ہوں گے، لیکن مجھے فی الحال نہیں پتہ، لیکن یہ 2 FIR جو تھے نا، ان کا قانونی ہم نے مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ باقی تو 3MPO بھی ختم ہو گیا، اور 780 میں بھی بیل ہو گئی، پشاور میں، بنو میں بھی بیل ہو گئی۔ اب باقی پھر پتہ چلے گا انشاءاللہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا جرم کیا تھا؟ صرف امن مانگا ہے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ امن مانگنے والوں کو 780 ان کو دہشت گرد پھر بنایا جاتا ہے، لیکن میں نے صرف امن مانگا تھا اور کچھ نہیں۔ اور اس دوران کیا آپ کو کھلایا پلایا جاتا رہا؟ سموسے وغیرہ تو نہیں کھلائے گئے آپ؟ یہ تو مجھے افیشیلی اپنی جیب سے بھی سموسے پسند نہیں ہے کہ میں اپنی جیب سے کھاؤں، تو کسی اور کے سموسے میں کس طرح پسند کروں گا؟ جو چیز مجھے خود افیشیلی اپنی جیب سے پسند نہیں ہوگی تو وہ چیز میں نہیں پسند کرتا۔ گھروں میں آپ کے لیے دعائیں مانگی گئیں، آپ کے لیے تحریک چلائی گئی، آپ کے لیے دوبارہ دھرنا دیا گیا، لوگوں نے مطالبات کیے۔ شاید آپ کو وہ تقریریں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں وہ آپ کو سننے کا موقع نہ ملا ہو، کیونکہ جب سے آپ رہا ہوئے ہیں مبارکباد کا سلسلہ ہے۔ تو کیا کہیں گے اس جذبے کے لیے اور بنو کے عوام کے لیے؟ یقین عادل صاحب کہ یہاں پر جو میں کھڑا ہوں نا، یہ ان سب ماں بہنوں کا، ان گھروں میں جو جن لوگوں نے روزے رکھ کے میری رہائی کے لیے، جن لوگوں نے تہجد پڑھے، جن لوگوں نے ایسے لوگوں نے میری رہائی کے لیے روزے رکھ کے میرے لیے دعائیں کی کہ ان لوگوں کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ یقیناً کہ میں یہاں پر جو کھڑا ہوں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میری اپنی قابلیت نہیں ہے، ان لوگوں کی دعاؤں کا رنگ لایا ہے۔ ان لوگوں نے جو روزے رکھے ہیں، ماں بہنوں نے مدرسے میں، مسجدوں میں، مردوں نے، بچوں نے، اسکول کے بچوں نے، یہ تو مجھے اب پتہ چل رہا ہے، کیونکہ میں جو حراست میں تھا وہاں پر تو سوشل میڈیا، اخبارات اس کا مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہاں پر جیسے ہی پہلا دن تھا تو میں نے ایسے بچوں کو دیکھا جو اسکول کے لباس میں تھے، وہ کہہ رہے کہ جیسے ہی آپ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر آ گئی کہ جمشید رہا ہو گیا اور بنو پہنچ گیا اپنے گھر، تو بچے جیسے اسکول کے لیے تیاری کرتے ہیں تو ان لوگوں کو پتہ چلا تو وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم نے آج اسکول نہیں جانا، جمشید کے پاس مجھے لے جاؤ، میں نے جمشید سے ملنا ہے۔ تب مجھے یوں لگا کہ بنو کے عوام نے، بنو کے بچوں نے، بنو کے مطلب گھروں کے عورتوں نے، یہ میرے لیے ان لوگوں نے کچھ کیا ہے۔ یا شکر الحمدللہ، میں سارا کریڈٹ ان عوام کو، ان ماؤں بہنوں کو یہ دیتا ہوں۔ یہاں پر جو میں کھڑا ہوں نا، اس میں میرا کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو سب اس عوام کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کا کیا لائحہ عمل ہے؟ جب یہ مبارکباد کا سلسلہ ہو جائے گا مکمل تو اس کے بعد کیا ارادے ہیں؟ انشاءاللہ مشورے کے ساتھ پھر آگے کا لائحہ عمل طے کریں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ کوئی بھی فیصلہ اکیلے نہیں کیا ہے۔ جو بھی فیصلہ کرتا ہوں تو مشورے کے ساتھ کرتا ہوں، اپنے مشران سے مشورہ کرتا ہوں۔ ابھی تو ماشاءاللہ میرا ایک لیول بھی ہے کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ مطلب آپ تو بنو کے مشران میں شامل ہو گئے، لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ میں الیکشن وغیرہ لڑنے کا ارادہ ہے؟ نہیں، دیکھو، اگر امن کے حوالے سے بات کرو گے نا تو ایک لیول پہ بات کرو گے۔ میں نے اگر بات کی نا تو میں نے اپنے علاقے کے لیول پہ بات نہیں کی۔ ہم تو اگر امن روتے ہیں نا امن کے لیے، تو یہ ایک انٹرنیشنل لیول کا مسئلہ ہے کہ ہم نے امن مانگنا ہے۔ تو اس حوالے سے جو بھی بات ہوگی، ہمارے اپنے فیملی وائز مشران بھی ہے، علاقے وائز مشران بھی ہے، بنو سطح پہ مشران بھی ہے۔ لیکن میں نے کہا نا کہ اگر لوگ کہتے ہیں کہ میں بنو سطح پہ ایک مشر کی حیثیت رکھتا ہوں، لیکن میں سب سے چھوٹا ہوں، مجھے کسی چیز کا کوئی شوق نہیں ہے۔ میں صرف اپنے علاقے کے لیے، اپنے بنو کے عوام کے لیے، ان غریبوں کے لیے صرف امن
کا ख्वाहिशमंद हूँ। बाकी मुझे ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और आपको याद है जब पुलिस लाइंस पेशावर का धमाका हुआ था, उसके बाद बावर्दी पुलिस एहलकारों ने मुजाहरा किया था, सबसे पहला इंटरव्यू आपने किसको दिया था? सबसे पहले इंटरव्यू मैंने आपको दिया था और आज भी सबसे पहले इंटरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। आज तक मेरी कोई इंटरव्यू जैसे मेरे हो गया हो ना, मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दी, क्योंकि सेहत के लिहाज से मुझे मुनासिब नहीं लग रहा कि मतलब मैं किसी को इंटरव्यू दे दूँ। खुदा न खास्ता मुझसे कोई ऐसी बात हो जाए जिसकी दिल आज़ारी हो जाए, लेकिन इस वक्त पूरी बन्नू की आवाम ये मेरे साथ ही खड़ी है और इनका जितना ही मैं शुक्रिया अदा करूँ ये कम है। जब भी आपका नाम लिया जाता है तो साथ में पुलिस डिपार्टमेंट का नाम भी लिया जाता है, पुलिस वाला जमशेद बन्नू वाला, ठीक है। अगर आपको पुलिस डिपार्टमेंट में दोबारा आपको बहाली का मौका मिलता है तो आप जाएंगे वापस? मुझे पहले भी शौक़ था और मैं एक शौक़ की वजह से पुलिस मैंने ज्वाइन किया और अब भी कहता हूँ कि मैं अगर एक मुहफ़िज़ बन के जिसमें मैं आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ कर सकूँ तो बिल्कुल मैं जान भी देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मुझे ये मौका नहीं दिया जा रहा कि मतलब मैं आवाम की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ करूँ, उनके साथ एक मुखलिस रहूँ, उनकी मदद करूँ, तो फिर बेहतर है कि मैं एक प्याज टमाटर की गाड़ी लगा दूं मंडी में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, उनको मैं तरजीह दूंगा। बनिस्बत ये कि मुझे अगर गवर्नमेंट या पुलिस में नौकरी, अगर पुलिस की नौकरी मुझे कोई भी इस वक्त अगर वो देना चाहता है तो मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अमन के साथ हो। जब भी ऐसी कोई रिहाई होती है, यानी इतने अरसे तक किसी को गिरफ़्तार रखा जाता है और फिर जब वो वापस आता है तो लोग ताने भी देते हैं, लोग मजाक भी उड़ाते हैं, लोग इन अल्फाज से मजाक उड़ाते हैं कि जी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो गया है। आप ये सॉफ्टवेयर के हवाले से क्या कहें? सॉफ्टवेयर के हवाले से बिल्कुल लोग कहते हैं, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की बात होती ना तो मैं 52-54 दिन क्यों गुजारता, 52-54 दिन क्यों गुजारता। तो मेरे केसेस तो अब तकरीबन ख़त्म हो गए होते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने आज तक ना बन्नू की आवाम, ना बन्नू के गरीब लोगों की, ना यतीम बच्चों की, ना बेवाओं की, ना पुलिस शहदाओं की, आज तक मैंने कोई किसी के साथ कोई कमिटमेंट ना हुई है और ना इंशाल्लाह कभी करूँगा। ये इसमें सॉफ्टवेयर तब होते हैं ना जब मतलब एक बंदा चला जाता है और 2 दिन 24 घंटे के बाद फिर वापस आ जाता है और विक्टोरी का निशान बनाता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मुकाबला ही किया है। ठीक है, सेहत के हवाले से मेरे ऊपर बहुत से सवाल भी उठे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह जैसे इस सेहत ठीक हो जाए तो सब कुछ इंशाल्लाह मंजराम आ जाएगा, खुद ब खुद आ जाएगा। जैसे जमशेद मंजराम पे आ गया, मुझे तो नहीं लगता था कि मतलब मैं इतनी शॉर्ट दिनों में मंजराम पे आऊँगा या मैं अपनी फैमिली वालों के साथ मिलूँगा, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों की दुआएँ थी, वो रंग ले आए और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। आदिल भाई बहुत शुक्रिया जमशेद खान। सवालात बहुत हैं लेकिन नाज़रीन जमशेद खान को ज़्यादा तंग नहीं करते, उनकी सेहत भी इजाज़त नहीं है। मैं तफसीली बात बाकी जो बन्नू की सूरत हाल के हवाले से वो नासिर खान बंगश साहब आपसे करूँगा। वो जो एक अमन मार्च हुआ, फिर 16 नुकाती मुतालबात की फ़हरिस्त रखी गई, फिर मुज़ाकराती जरगा पेशावर गया, एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन्नू आए, सारे ऐलानात हुए, उन ऐलानात पर कितना अमल हुआ है? उस ऐलानात के ऊपर तकरीबन 1% भी अमल नहीं हुआ है। वो सरासर हमारे साथ धोखा किया गया है और जिन लोगों ने हमारे बन्नू के इन माहिदा के खिलाफ वर्जी की, मैं तो उनके लिए दिल से बददुआ निकलती है, क्योंकि इन लाखों लोगों के जो अमन मार्च के लिए निकले थे उनकी तौहीन की गई है। तो मैं ये समझता हूँ ना कि उसका जो चेयरमैन होता है एपेक्स कमेटी का, वो वज़ीर आला होता है। वो बोल रहा था कि मैंने मंजूर किया है। आज तक जो वज़ीर आला ने ऊपर जो स्टेज के ऊपर एक फ़ाइल लहराया था ना कि ये बन्नू कौम आपका मादा है, वो फ़ाइल आज तक हमको नहीं मिला है। और इसके अलावा जो एपेक्स कमेटी के मिनट्स है वो 25 जुलाई को हमारा एपेक्स कमेटी का एज ए मेंबर में गया हुआ था ना, तो 25 जुलाई का जो एपेक्स कमेटी के जो मिनट्स है ना वो 1 सितंबर तक 45 दिन में 50 दिन में वो रिलीज़ नहीं हो रहे थे, ऑफिशियल नहीं हो रहे थे। वो 2 सितंबर को हमारे शदीद दबाव के ऊपर कि हमने पीर बानू को निकालना है, तब चालो ऑफिशियल हो गए। फिर जब ऑफिशियल हो गए, लेकिन अब तक उसके बाद हमारे साथ ये मामला हो गया कि हमारे मुशरान को शेड्यूल 4 में डाला गया और हमारे जमशेद भाई, हमारे जो अमन पसंद के मुशरान हैं, उनको उठाया जाने लगा। उनके दरमियान उनके ऊपर अगर कोई गलती थी, कोई कसूर था, हम मुशरान को बताते, हम उनको मुज़ाकरात की जिस तरह हमने लाखों मर्ज का मसला मुज़ाकरात से हल किया, तो एक जमशेद का मसला हम हल नहीं कर सकते थे। जमशेद के अलावा कितने लोग गिरफ़्तार हैं? जमशेद तो सिर्फ गिरफ़्तार हैं, इसके अलावा फ़िलहाल एक हमारा दूसरा बंदा था जहाद यार खान नाम था, उनको उठाया गया, किसी और ज़िम्नी में डाला गया था कि ये आपने ये किया हुआ है, क्योंकि सरकार के पास तो हर चीज़ का तोड़ होता है, आपको जिस तरह भी पंसाना चाहता है पंसा जाता है। बकाया मेरा ताल्लुक PTM के साथ जोड़ा गया। मैं एक कारोबारी शख्सियत है, मेरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ ताल्लुक़ है। मेरा तकरीबन 1970 से हम इधर गुड़ मंडी में घी चीनी डीलर एसोसिएशन का कारोबार कर लेते हैं।
बन्नू के लोगों का एतमाद का मतलब तो ये नहीं है कि मैं किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ हमारा कोई ताल्लुक है। हमारा नाम भी और बहुत से लोगों का नाम शेड्यूल 4 में डाला गया। शेड्यूल 4 तो आपको पता है कि कैसा चीज़ है, लेकिन मुझे डाला किसी और ने नहीं है, मुझे सूबाई गवर्नमेंट ने डाला है। तो आपको सूबाई गवर्नमेंट की मजबूरियों का नहीं पता, अली अमीन गंडापुर की मजबूरियों का तो आपको शायद पता है कि बहुत सारे आपके जो मुतालबात हैं, जो मामलात हैं, वो बराह रास्त पाक फ़ौज के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वफाकी हुकूमत के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। नहीं, हमारे ऐसे कोई मतलबात नहीं है। उनके साथ एपेक्स कमेटी दोम जो है ना, ये दोम हो गई थी। पहली जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था वो सनहा पब्लिक स्कूल के वक्त हुआ था, दूसरी हमारे बनो अमन पसंद की वजह हुआ था। नहीं बंगश साहब, आपने जो एक मुतालबा रखा था कि फ़ौज से इख्तियार लिया जाए, CTD को दिया जाए या बनू पुलिस को दिया जाए, तो वो तो ज़ाहिर है कि बराह रास्त फ़ौज का मामला था ना, वफाकी हुकूमत का मामला था। तो इसमें अली अमीन गंडापुर क्या कर सकते थे? नहीं, हमने तो ये बिल्कुल रखा था ना। वो हमारे साथ एपेक्स कमेटी में हमारे साथ वो बात मानी गई थी। चलो वो एक नाम मान लेते, बकाये के ऊपर तो कुछ 16 नुकात थे, उसमें किसी एक के ऊपर तो किसी एक के ऊपर तो वो अमल करते थे। लेकिन अभी जो हमारे ऊपर जो हथियार चलाए जा रहे हैं, जो हमको निशाना बनाया जा रहा है, हमारे मुशर्रान को निशाना बनाया जा रहा है, वो कौन बना रहा है? वो सूबाई गवर्नमेंट बना रही है। वो जो अमन पासून हुआ था और जो मुलाकात एपेक्स कमेटी का इजलास, उसके बाद यहाँ पे कुछ मराकज़ के ऊपर छापे लगाए गए थे। वो गुड बैड तालिबान की जो बात थी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, तो वो तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ अमल तो हुआ था उस पर। नहीं, वो ऐसा अमल हुआ था ना, वो ऐसा था कि एक चीज़ को एक जगह से उठाओ, एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख दो। अच्छा, इस तरह अब क्या सूरत हाल है बनू? अभी सूरत हाल जो है वो इंतहाई गंभीर है। अच्छा, अभी लोग नहीं है, अभी लोग वो हमने उसमें ये मुतालबा ये भी था कि पुलिस 24 घंटे गश्त करेगी। अभी पुलिस 5-6 घंटे गश्त करती है, फिर अंदर चले जाती है। शाम के बाद पुलिस नहीं फिरती? शाम के बाद नहीं, असर के बाद पुलिस नहीं होती है। अच्छा, पुलिस के बाद ये और लोग आ जाते हैं जो किसी लोगों के खास बंदे, वो आ जाते हैं पूरे, लेकिन कोई उनके पीछे नहीं आता है, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। एक बंदा जो होता है ना, उनको मतलब होता है ना, मस्जिद में भी हो ना तो बूटों समेत दायल हो जाते हैं, उनको उठा लेते हैं। लेकिन 2-2 मन के 40-40, 20-20, 25-25 बंदे घूमते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है। बन्नू के हालात ख़राब किए जा रहे हैं। हम क्या चीज़ मांगते हैं? हम अमन मांगते हैं। बन्नू में कितनी ताजर बरादरी है? तकरीबन हज़ारों की दुकानें हैं। 80,000 ताजर हैं हमारा बन्नू में, बन्नू सिटी में 80,000 ताजर हैं। और पहले अमन मार्च में लाखों की तादाद में लोग निकले थे। हाँ बिल्कुल, ठीक है, गलियां सड़कें लोगों से कचाकच भरी हुई थी। ये जो दूसरा अमन मार्च हुआ था, इसमें लोगों की कम तादाद की वजह क्या है? नहीं, उसमें इतनी तादाद कम है, 1.5-2 लाख लोग तो निकले थे। उसमें कम तादाद की वजह ये थी कि उस वक़्त जो लोग थे ना, वो हर एक MNAs ने MPAs ने अपने तौर पर वीडियोस चलाई थी। उसमें तुम मुझे सिर्फ एक MNA नसीम अली शाह के अलावा कोई दूसरा MPA मुझे बताओ कि वो हमारे स्टेज पे आया हो। कोई भी नहीं आता है। और जिस तरह लोगों को, मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये लोग ये समझते हैं कि तकसीम करो और हुकूमत करो। बकाहेल जानीहेल ये लोग हमसे कट गए थे। क्यों कट गए थे? हमको तकसीम किया गया है, हमारे अंदर दरिया बनाई गई है। ये लोग भी मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हम इत्तेफाक, हम हौसला नहीं हारते हैं, क्योंकि पिछले पसून की वजह से लोग थोड़े दिल बर्दाश्त हो गए थे। वो बोल रहे थे कि पिछले पसून का क्या हुआ, हमने कितना कुर्बानी दे दी। उसका सिला ये मिला कि बजाय इसके कि हमको अमन दिया जाए, पुलिस 24 घंटे ड्यूटी करे, उल्टा वो हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने लगी। पंगे साहब, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवालात हैं और फिर ये वीडियो बहुत तवील हो जाएगी। बन्नू के लोग ऑपरेशन नहीं चाहते, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल, जब आप ऑपरेशन भी नहीं चाहते, जब CTD के पास इतना इख्तियार नहीं है या इतने वसाइल नहीं हैं, और ये भी कहा जाता है कि जी फ़ौज निकल जाए, तो फिर ये सूरत हाल कैसे ठीक होगी? हमारा मुतालबा तो ये नहीं है कि फ़ौज निकल जाए। अच्छा, और ना हमने कभी ये मुतालबा किया है। फ़ौज में हम ये नहीं बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि जो भी काम करें, हमारा आर्मी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि हमारे अपने ख़ानदान के लोग आर्मी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा उनकी पॉलिसी से इख्तिलाफ है। आप जब गुट के ऊपर अपना दिफा करेंगे तो आपकी क्या हैसियत रहेगी? तो आप बोलते हैं कि ये गुट हो गए, ये गुट थे तो इसकी वजह से ये बेड नहीं आ सकते थे, तो आपकी क्या पोजीशन है? तो आपको तो इधर नहीं होना चाहिए ना, फिर तो आपकी, हमको आवाम को खुद बंदूक उठाना चाहिए। हम बोलते हैं कि फ़ौज भी आए, हम भी उनको वेलकम कर लेते हैं। इन लोगों के खिलाफ
कार्रवाई करें, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करें। अभी तो 10-10, 20-20 हैं, अभी तो उनको टारगेट करने में आसानी भी है। मगर लोग नकल मकानी ना करें उस तरह का लोग ऑपरेशन। नकल मकानी का ऑपरेशन, टारगेटेड ऑपरेशन की में हमेशा। और ये जो सरगोदा की बात हो रही थी, ये ऑथेंटिक बात थी, मुस्तनद बात थी? कहाँ से ये आपको पता चला कि जी सरगोदा में कोई कैंप बन रहा है? मतलब बहुत मशहूर किया गया था इस बात को। सरगोदा के जो कैंप है और उनके जो माल्टी की बात है वो तो वैसी बीमाशा हो रही है। हमारे लोगों नहीं है, हमारे जो लोग नहीं, सोशल मीडिया नहीं है, ये आसमान पर सब कुछ चला देता है। मतलब इस बात में कोई हकीकत तो नहीं थी ना कि? फिलहाल हकीकत नहीं थी, वो इधर हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते, सरगोदा में किधर बर्दाश्त करेंगे हम। तो चले इस बात की वजाहत भी आज हो गई। आज उसके बाद बहुत शुक्रिया नासिर खान बंगश। नाज़रीन, आपने देखा बन्नू की सूरत हाल। उम्मीद है कि इस वीडियो में बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे और बन्नू की इस वक्त मौजूदा क्या सूरत हाल है, लोगों के मुतालबात किस हद तक पूरे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये सारे मुतालबात पूरे होंगे, लेकिन बन्नू के लोग, बन्नू के जो मशरान हैं, ये हुकूमत के वादों से और जो यकीन दहानियाँ उनको कराई गई थी उनसे लगता है कि मुतमईन नहीं है। बहुत शुक्रिया।